Hello students, my name is Ankit Kumar Shukla and we welcome all of you on my YouTube channel Ganit Master. Students, today we discuss the class 9 CBSE board motion. This is the first chapter of the physics and we explain the topic, explain the chapter motion. Students, if you are new on my YouTube channel, then first of all, please subscribe my YouTube channel Ganit Master. Go to the search box and search Ganit Master only when this logo Ganit Master is appeared, then you subscribe the YouTube channel. Students, after subscribe this YouTube channel, press the bell icon also and don't forget to like and share our videos. Students, this is the CBSE class 9th physics and chapter 8, that is motion. Student, my WhatsApp number is 9236910457. If any doubt, you can message me on this WhatsApp number. Students, YouTube channel is Ganit Master, Telegram also Ganit Master, because all the ebook is uploaded on the Telegram group Ganit Master. So you can also join the Telegram group Ganit Master and follow me on Facebook as a Ganit Master. Okay, students, let us start the CBSE Class 9 Physics Chapter 8 Motion. Students, if we talked about motion, then first of all we have to know about rest. What is rest? A body is said to be in rest if its position does not change. If its position does not change with respect to a reference time, with respect to the reference point, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, पॉइंट लिख देते हैं, POINT, point. A body is said to be in rest if its position does not change with respect to a reference point. Okay? अगर कोई बॉडी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका जो पोजीशन है वह नहीं बदल रहा है, वह नहीं बदल रहा है किसी भी रेफरेंस में, तो उसको क्या कहा जाता है कि वह बॉडी, वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में। रेस्ट मीन्स वह बॉडी, वह ऑब्जेक्ट, वह पिंड विरामावस्था में है। किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि मोशन, व्हाट इज मोशन? A body is said to be in motion if its position change with respect to a reference time. With respect to a reference time या reference point. अगर कोई बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव कर जाती है, क्या कर जाती है? यहाँ पर ये बॉडी थी और ये मूव करके यहाँ पे पहुँच गई, तो हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है ये मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। अब हम मोशन का अगर हम अलग एक डिफिनीशन निकालें कि मोशन होता क्या है, तो कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट from one position to other position. What? Movement of any object from one position to another position with respect to the observer is called motion.
अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, वो बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अगर ये मूव कर जाए, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये यहाँ से मूव करके इस पोजीशन पर चला आए, यानी कि मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। अब भाई कौन देखेगा? ऑब्जर्वर तो ही देखेगा। ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज मोशन। क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज मोशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट, linear motion. Linear motion means straight motion. Second is a circular motion. Circular means circular motion on a circular path. Vibratory motion. Vibratory means vibration. Vibration. Oscillatory motion. Oscillatory motion means pendulum. पेंडुलम, जो वॉच होती है दीवार वाली, उसमें पेंडुलम लगा रहता है और ये पेंडुलम ऐसे ऐसे क्या किया करता है? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट मोशन किया करता है। और इस प्रकार के जो मोशन होते हैं उसको ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। कौन सा मोशन कहा जाता है? ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। अब देखिए रोटेटरी मोशन। लट्टू की अगर हम बात कर लें तो वो क्या होता है? वो रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट करता है। कर्व्ड मोशन। अब देखिए स्नेक, जो सांप होता है, वो क्या करता है? वो कर्व्ड मोशन करता है, ऐसे 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 क्या करता है? कर्व्ड मोशन करता है। तो अब ये हमने देखा कि मोशन के कुछ टाइप्स। अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, पोजीशन के बारे में बताने जा रहे हैं। किसके बारे में बताने जा रहे हैं? पोजीशन के बारे में, कि पोजीशन क्या होता है। क्या? व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन की बात करें तो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय इट्स पोजीशन। पोजीशन से ही तो पता चलता है कि यह जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन कर रही है कि मोशन नहीं कर रही है। और कौन देखता है? एक फर्स्ट पोजीशन आपका ये हो गया और अनदर पोजीशन जो सेकंड पोजीशन हो गया, ये पोजीशन फर्स्ट और ये पोजीशन सेकंड। अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये क्या कर रहा है? इसको देख रहा है। तो हम कहेंगे पोजीशन इज द लोकेशन। ये इसका क्या है? लोकेशन है। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ पासेज ऑफ टाइम। अब समय के साथ में इसका जो लोकेशन है आफ्टर टी टाइम ये चेंज हो गया। क्या हो गया? पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे पहुंच गया। देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो ये किस में कहा जाएगा? ये मोशन में कहा जाएगा। किस में कहा जाएगा? ये मोशन में कहा जाएगा। तो हमने क्या बोला? पोजीशन, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ object change its position with the passage of time it is said to be in motion. Okay, now we explain the term that is reference point. What is reference point? Okay, what is reference point? reference point की अगर हम बात करें तो it is the point, it is the point from which the location of object is measured. अब देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से अगर हम इसका लोकेशन ऑब्जर्व करें, क्या करें? लोकेशन को अगर ऑब्जर्व करें तो जो इसका लोकेशन होगा वही इसका रेफरेंस पॉइंट होगा।
और इसको हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। तो इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, इट इज ऑफन कॉल्ड ऑरिजिन, और इसको हम कहते हैं क्या, ऑरिजिन भी कहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट कैन बी लोकेटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस पॉइंट एंड इट्स डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन नहीं दिया होगा तो हम उसको हम कैसे बता पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट इस साइड में है, इस डायरेक्शन में है। एज यू नो डैट ऑन द अर्थ all the things are moving, all the things are moving, but observer is on the earth। अब ये अर्थ है, यहाँ पे जब अर्थ मोशन कर रहा है तो सब कुछ मोशन कर रहा है, लेकिन अब ऑब्जर्वर भी अर्थ पर है तो ये इसको नहीं पता चलता है कि हम मोशन कर रहे हैं। तो अगर हम एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेंगे, अगर हम अर्थ पर हैं, अर्थ मूव कर रहा है लेकिन हम अर्थ पर रहेंगे, तो हम क्या रहेंगे, हमारा लोकेशन क्या रहेगा, हम रेस्ट में रहेंगे। किस पर रहेंगे, रेस्ट पर रहेंगे। और अगर हम देखें कि अगर हम ट्रेन पर हैं, किस पर हैं, ट्रेन पर हैं, और ट्रेन से अगर हम अर्थ को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि अर्थ पर जितने भी पेड़ लगे हुए हैं, जितने भी ट्रीज लगे हुए हैं, क्या, अगर ये मान लिया ट्रेन है, ट्रेन में हम बैठे हुए हैं और बगल में अर्थ में क्या लगा हुआ है, ट्रीज लगा हुआ है, तो ट्रेन तो मूव कर रही है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन मूव कर रही है तो हम क्या देखते हैं, जो ये ट्री है ये मूव कर रहा है पीछे के साइड में। किस साइड में, ट्रेन हमारी अगर इधर मूव कर रही है तो ये ट्री किधर जा रहा है, पीछे के साइड में जा रहा है। तो ट्रेन चल रही है, हम ट्रेन पर बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो हमें क्या लगता है कि हम स्थिर हैं और ये जो अर्थ का पेड़ है ये मूव कर रहा है। तो जो मोशन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, रेफरेंस पॉइंट पे क्या करता है, वेरी करता है। क्या करता है, वेरी करता है। सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल, अ पर्सन चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्री विथ अ पैसेज ऑफ टाइम। एक पर्सन है और वो क्या कर रहा है, ट्री से अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है ऐसे। इन दिस एग्जाम्पल पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो पर्सन होगा वो क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट होगा। एंड ट्री इज अ रेफरेंस पॉइंट, और ट्री क्या हो जाएगा, आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अभी हमने क्या बताया कि अगर हम ट्री ले लें कि ये ट्री है और ये कोई व्यक्ति है, कोई मैन है, और ये क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, तो ट्री हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, और ये जो मैन है ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्शन इज आल्सो नेसेसरी टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन भी जरूरी है कि डायरेक्शन, ये जो व्यक्ति है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बहुत ही जरूरी है। क्या, कि ये व्यक्ति किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो in this example tree is called frame of reference and man is called object. Okay, now we explain the topic straight line motion. What, straight line motion, what is straight line motion or linear motion? When an object moves in straight line with respect to the observer, ऑब्जर्वर यहाँ पर है और ये ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, द मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन। अगेन वी explain the straight line motion when an object moves in straight line with respect to the observer, then the motion is called straight line motion. Okay, straight line motion. Example,
If we take the example of lift, you know about lift. लिफ्ट का यूज हम कहाँ पे करते हैं? लिफ्ट का यूज बहुमंजिला जब इमारत बनी होती, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, क्या बनती, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, तो यहाँ पर लिफ्ट लगा रहता है। और ये जो लिफ्ट रहता है, ये अगर हमको इस टॉप पर जाना है तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, और फिर यहीं से नीचे भी आ जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। तो ये जो लिफ्ट ऊपर नीचे स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। किस लाइन में मोशन कर रहा है? ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। तो अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हमारा लिफ्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा कि लिफ्ट ऊपर गया और फिर लिफ्ट नीचे भी आ गया। ओके, अब देखिए, पॉजिटिव साइन शोज पोजीशन इन राइट डायरेक्शन। व्हाट? अगर पॉजिटिव साइन है तो हम कहेंगे कि ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, या ऊपर जा रहा है, ठीक। और निगेटिव साइन अगर है तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है या डाउन जा रहा है। कहाँ जा रहा है? डाउन जा रहा है। तो पॉजिटिव साइन शोज राइट हैंड मोशन एंड नेगेटिव साइन शोज लेफ्ट हैंड मोशन, या डाउन एरो या अबव एरो। ओके, जीरो इज कंसिडर्ड एज रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। और जीरो को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कह देते हैं। अगर इसको हम ऐसे देख लेते हैं, नंबर लाइन पर देख लेते हैं, कैसे देख लेते हैं? नंबर लाइन पर अगर देख लेते हैं तो ये जो जीरो होगा ये तो आपका जीरो हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ पे ये 1, यहाँ पर ये 2, और इधर कर देंगे तो ये -1, और ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ गया, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। क्या आ गया? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इज स्केलर and second is vector. What is scalar? If we talked about scalar, the physical quantity having magnitude but no direction. That means scalar is a quantity which has not direction, स्केलर इज अ क्वांटिटी विच हैज नॉट डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, विच रिक्वायर्स नॉट डायरेक्शन। अगर एग्जाम्पल इसका हम ले लें, जैसे डिस्टेंस, क्या ले लिए? सच एज डिस्टेंस, स्पीड, बोथ हैव, डिस्टेंस एंड स्पीड हैव मैग्नीट्यूड, have magnitude and only magnitude, ओके। अब इसको हम समझेंगे कैसे? अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल ले लिया कि हम अपने घर से 2 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर गए। हम अपने घर से, ये हमारा होम था, यहाँ से 2 किलोमीटर हमको चलना है, लेकिन चाहे जहाँ चले जाएं, चाहे नॉर्थ में जाएं, चाहे साउथ में जाएं, चाहे ईस्ट में जाएं, चाहे वेस्ट में जाएं, या नॉर्थ ईस्ट में जाएं, या नॉर्थ वेस्ट में जाएं, साउथ ईस्ट में जाएं, या साउथ वेस्ट में जाएं, 2 किलोमीटर हमको चलना है। तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाती है? स्केलर क्वांटिटी रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, और ये जो 2 किलोमीटर है ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस एंड स्पीड। नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज वेक्टर? The physical quantity having both magnitude and direction,
बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और साथ साथ में डायरेक्शन भी हो। वही एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने हाउस ले लिया। अब हाउस में हमने कहा कि 2 किलोमीटर ईस्ट में जाना है। किधर जाना है? ईस्ट में जाना। हमने जब डायरेक्शन दे दिया तो ये आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पर जो ये 2 किलोमीटर हो गया, ये तो आपका हो गया मैग्नीट्यूड। लेकिन जो ये डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो गया, एक साथ हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया? वेक्टर बन गया। क्या बन गया? वेक्टर बन गया। अब अगर हम वेक्टर के एक और डिफिनेशन की बात करें, वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल में हम फोर्स भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? फोर्स। फोर्स यानी कि बल। अगर फोर्स लगाएंगे तो किसी ना किसी डायरेक्शन में लगाएंगे, और जब डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब अगर मैग्नीट्यूड अगर आपको फिर से नहीं समझ में आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड के बारे में हम फिर से बताते हैं आपको कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, if we explain the term magnitude, magnitude of vector only represent numerical value. It has only, magnitude has only numerical value. Numerical value of the vector without its direction, and without its direction. Magnitude has only numerical value without its direction. Scalar and vector quantity. Again we explain, scalar quantity having magnitude and direction, scalar quantity having only magnitude, vector quantity having magnitude and direction both. Okay, the next topic is uniform motion and non-uniform motion. Next topic, uniform motion and non-uniform motion. My dear students, motion is of two types. First is uniform motion and second is non-uniform motion. Okay, what is uniform motion? When a body travels equal distance in equal time interval. Okay, when a body travels equal distance in equal time of interval, then the motion is said to be in uniform motion. Okay, जब कोई ऑब्जेक्ट समान समय में समान दूरी तय करती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? एक समान मोशन कहते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब हम यहीं पे बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, उसके बाद में एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन द मोशन इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी समान समय में अलग अलग डिस्टेंस चलते हैं, अलग अलग डिस्टेंस तय करते हैं, अलग अलग दूरी तय करते हैं, तो क्या हो जाता है? वह हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब हम यहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं, आप अच्छे से समझिएगा इसको। देखिए, एग्जांपल लेते हैं। ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेकेंड में 2 मीटर, फिर यहां से फिर चला, नेक्स्ट 1 सेकेंड में अगेन 2 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर,
नेक्स्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर. ओके, then this type of motion is called uniform motion. This type of motion is called uniform motion. अगर कोई वस्तु पहले सेकेंड में 2 मीटर चलती है, दूसरे सेकेंड में भी 2 मीटर चलती है, उसके बाद में फिर दूसरे सेकेंड में 2 मीटर चलती है, हर एक सेकेंड पर वह 2-2 मीटर चलती है, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है. क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है. अगर हम किसी गाड़ी की बात करते हैं, किसी व्हीकल्स की बात करते हैं, ये मान लिया कार है. क्या है? ये हमारा कार है. ये मोशन कर रहा है. 1 आवर में 60 किलोमीटर मोशन किया, मूव किया. फिर अगले 1 आवर में फिर से ये 60 किलोमीटर अगर मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे हर एक घंटे पर ये 60 किलोमीटर अगर मूव कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा. और अगर हम बात करते हैं कि अगर यही कार, क्या अगर यही कार फिर से मूव कर रहा है, लेकिन इस बार 1 घंटे में 1 आवर में ये 2 किलोमीटर, अगर ये गया 1 आवर में 40 किलोमीटर. ठीक, कितना गया? 40 किलोमीटर. अगले 1 आवर में ये 60 किलोमीटर गया. फिर 1 आवर में ये कितना चला गया? 80 किलोमीटर गया. अब देखिए, हर एक घंटे पर जो इसका डिस्टेंस है ये अलग अलग है. पहले घंटे में 40 किलोमीटर गया, दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर गया, तीसरे घंटे में 80 किलोमीटर गया. इस प्रकार हमने देखा कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो जो उसका डिस्टेंस होता है वो टाइम के साथ साथ अलग अलग होता है. क्या होता है? अलग अलग होता है. तो वही हमने बताया कि यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal time interval, then the motion is said to be in uniform motion. And the next non-uniform motion when a body travels unequal distance, अलग अलग डिस्टेंस कवर करे, किसमें? लेकिन इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो? सेम हो, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, then the this type of motion is said to be non-uniform motion. Students, now we explain the next topic, that is एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया. एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन एंड डी एक्सेलरेटेड मोशन. व्हाट इज एक्सेलरेटेड मोशन एंड व्हाट इज डी एक्सेलरेटेड मोशन? व्हेन मोशन ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विथ टाइम, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन. देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, जो मोशन है, वो इंक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे. क्या कहेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे. अगर हम बात करें, आपने जब गाड़ी स्टार्ट की, अपना बाइक स्टार्ट किया, तो जो उसका मोशन था सबसे पहले वो कितना था? वो आपका 0 था. लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे हमने उसको स्पीड को बढ़ाया है, उसको एक्सेलरेट किया, तो फिर उसका मोशन बढ़ गया. 0 से 20 आया, 20 से 50 गया, 50 से 80 गया. क्या गया? वो बढ़ गया. तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं. अब अगर हम बात करें कि डी एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, तो डी एक्सेलरेटेड मोशन में जब आपने क्या किया, अपने बाइक में ब्रेक लगाया. क्या लगाया? ब्रेक लगाया. और जब ब्रेक लगाए तो जो उसका मोशन था, उसका जो मूवमेंट था, वो कम हो गया, यानी कि उसकी स्पीड डिक्रीज होने लगी. तो व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज विथ टाइम, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड डीएक्सेलरेटेड मोशन. देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड डीएक्सेलरेटेड मोशन. ओके, तो जब स्पीड बढ़ती है तो उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, और जब ब्रेक लगाकर उसकी स्पीड को कम किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं?
डी एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इन टुडेज सेशन you learn about motion, scalar quantity and vector quantity, uniform motion and non-uniform motion, accelerated and deaccelerated motion. And in my next video lecture you study about distance, displacement, speed, velocity, acceleration and deacceleration. So students, if you like these videos, then please subscribe my YouTube channel Ganin Master, and also share this video to your friends, social sites. Students, we see you in my next video lecture. Have a nice day. Goodbye, and thanks for watching this video till last.